ध्यान से सुनना, isobaric heat addition to perfect gas. I hope you are able to recollect one beautiful thing. Yesterday I have discussed, if we are supplying the heat to a perfect gas isobarically, then 100% volume of the perfect gas increases. At the same time, temperature of the perfect gas is going to increase. अब ध्यान से सुनना बेटा, what I'm trying to tell you, listen carefully. What I'm trying to tell you, listen carefully. क्या मैंने बोला आपको? Whenever we are supplying heat to a perfect gas isobarically, 100% volume of the perfect gas is going to increase. At the same time, temperature of the perfect gas is going to increase. Now listen carefully. Now listen carefully. Can I say, for isobaric heat addition, for isobaric heat addition to perfect gas, to perfect gas, बेटा कैन आई से 100% वॉल्यूम इंक्रीजेस? ये कंफर्म करना बेटा, कैन आई से 100% वॉल्यूम इंक्रीजेस? एक बार ये कंफर्म कर दो, कैन आई से 100% वॉल्यूम इंक्रीजेस? क्या मैं विद फुल कॉन्फिडेंस बोल सकता हूं वॉल्यूम इंक्रीज होगा? यस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। बट अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देन कैन आई से V2 is greater than V1? What is V2? Final volume. What is V1? Initial volume. Can I say final volume will be greater than initial volume? Can I say V2 will be greater than V1? Yes. Final volume will be greater than initial volume. तो यार डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? What is the WD? Can I say it is the P V2 minus V1? यही होता है ना? अरे पर isobaric process, what is the displacement work? P delta V, P V2 minus V1. 100% I am having increase in volume. 100% V2 minus V1 is positive. And if V2 minus V1 is a positive, can I say WD displacement work is positive? 100% displacement work is positive. That means work is done by the system. इतना मेरे को समझ में आ गया बेटा, इतना मेरे को समझ में आ गया. This I am able to understand. This I am able to understand. इतना तो मेरे को समझ में आ गया. Now listen carefully. बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा. What will happen to temperature? Alright, champa. What is going to happen to temperature if I'm having isobaric heat addition to a perfect gas? What will happen to the temperature? There is no doubt. There is no doubt temperature increases. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. 100% temperature increases. 100% temperature increases. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? T2 is greater than T1. फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर. यहां तक तो सब लोग क्लियर हैं. 100% फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर. अच्छा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी? अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा. डेल्टा U 1 to 2 will be what? mCV delta T. What is the meaning of delta T? T2 minus T1. But I'm asking you a very simple question. If delta T is positive, T2 is greater than T1, any intelligent student of the class can tell me delta U will be positive or negative? अरे मास तो पॉजिटिव है, मास तो पॉजिटिव है, CV भी पॉजिटिव है, T2 is greater than T1, so T2 minus T1 will be positive. Delta U is a positive. There is no doubt. Delta U is a positive. ये समझ में आ रही है बात? ये आपको समझ में आ रही है बात? बेटा एक बार देख लेना तो इसका मतलब क्या हुआ? If I am having a system which is consisting of perfect gas,
or if I'm having a perfect gas consisting simple compressible stationary system, if you are supplying the heat, अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो वर्क डन पॉजिटिव है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव. देखना बेटा ध्यान से देखना. लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम formed by this perfect gas. मान लो ये perfect gas air है, and let us suppose this air is my system. Let me say I'm supplying the heat of 20,000 kilojoule. Let us suppose जितने भी heat interactions, work interactions, energy interactions जो भी हैं सब किलोजूल में है ना. Let us suppose I'm supplying the heat of 20,000 kilojoule. Now, what is happening? 100%. There will be some displacement work. Let me say this displacement work is of 15,000 kilojoule. Any intelligent student of the class can tell me what will be delta U then? There is no doubt. Delta U will be how much? 5,000. अरे बिल्कुल होना भी चाहिए ना. ये बेटा ये वैल्यूज मैंने एज्यूम की हैं. कल को चंपू मेरे पीछे पड़ जाएगा, सर आपने 15,000 क्यों ली, सर 10,000 ले लेते, 12,000. और चंपू वो भी मैं बताऊंगा. इफ यू आर सप्लाइंग दिस मच हीट, हाउ मच हीट विल बी कन्वर्टिंग इनटू वर्क. अभी इतना तो समझ ले रहे बाबा. लेट अस सपोज आई एम सप्लाइंग द हीट ऑफ 20,000 किलोजूल. अभी मैंने देखा जब भी आप हीट सप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्क पॉजिटिव होगा, 100% डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव. दैट मींस व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. लेट अस सपोज आई एम सप्लाइंग द हीट ऑफ 20,000 किलोजूल, 100% डिस्प्लेसमेंट वर्क एंड डेल्टा यू मस्ट बी पॉजिटिव. आई एम अज्यूमिंग डेल्टा यू इज 5,000, WD इज 15,000. आर यू एबल टू कोरिलेट? व्हाट अ ब्यूटीफुल आइसोबारिक वाइफ. My Champu Pritham Pyare is software engineer. My Champu Pritham Pyare is software. He is working so hard throughout the month, and finally he is getting the salary. Finally he is getting the salary of 20,000 rupees. और जैसे ही चंपू के अकाउंट में पड़े 20,000, याद रखना ये अकाउंट तो क्या था? जॉइंट अकाउंट था रे बाबा. This account was joint account. So the moment company is depositing 20,000 rupees in joint account, what is happening? Oh my God, beautiful wife है रे बाबा. ब्यूटीफुल वाइफ बोली, और जैसी 20,000 आए 15,000 साइड में. The wife has withdrawn 15,000 rupees immediately. अरे बहुत सारे खर्चे हैं रे बाबा. There are so many expenditure: lipstick, makeup, new clothes, dry cleaning, हेयर डाई. कितने सारे खर्चे होते रहे पापा. किटी पार्टी. There are so many expenditure. Immediately निकल गए रे बाबा 15,000. Now how much is the saving in joint account? Only 5,000 rupees. I hope everyone is able to understand what I'm saying. Beautiful isobaric wife. जैसे ही हस्बैंड की सैलरी डिपॉजिट हुई, अपना खर्चा निकाला और कुछ सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया. इन आइसोकोरिक पाइप व्हाट वाज हैपनिंग? आइसोकोरिक पाइप में क्या हो रहा था बेटा? आइसोकोरिक पाइप, ब्यूटीफुल वाइफ बोली, ना 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 स्वामी, मेरा कोई खर्चा नहीं है. स्वामी, आई डोंट हैव एनी एक्सपेंडिचर. व्हाटएवर यू आर अर्निंग, व्हाटएवर योर सैलरी इज कमिंग इन जॉइंट अकाउंट, वो पूरी सेविंग रहेगी. आइसोबारिक पाइप बोलती है, नाना चंपो, नाना रे बाबा चंपू, जो भी सैलरी आएगी मेरा खर्चा अलग, मेंटेनेंस चार्जेस अलग, बाकी होगा सेविंग. अभी तो और भी वैरायटी दिखाऊंगा बेटा. अभी तो आइसोथर्मल वाइफ आएगी, एडियाबेटिक वाइफ आएगी, पॉलीट्रॉपिक वाइफ आएगी. अभी तो बहुत सारी वाइफ आने वाली हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां तक क्लियर है सब लोग? कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को ऐसी आइसोबारिक वाइफ चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट सच आइसोबारिक वाइफ? कितने लोगों को ऐसे आइसोबारिक पाइप चाहिए? कितने लोगों को ऐसे आइसोबारिक पाइप चाहिए रे बाबा? नहीं चाहिए? अरे इसको मना कर रहे हो, तो आने वाली वाइफ का क्या होगा रे बाबा? आइसोथर्मल वाइफ, एडियाबेटिक वाइफ, पॉलीट्रॉपिक. आप तो पगला जाओगे. यू विल गो मैड.
यू विल गो मैड आफ्टर सीइंग दोज वाइफ्स। ये तो फिर भी बहुत बढ़िया है, ये तो फिर भी बहुत बढ़िया है सर, अच्छी जॉब मिल जाए तो सोच सकते हैं। चलो अब एक चीज देखना बेटा, एक बेहतरीन चीज बताता हूं। सी हियर द ब्यूटीफुल थिंग, एक बेहतरीन चीज देखेंगे बेटा। अब सुनना, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी बेटा, if Q is positive, that means if I am having heat supplied, that means if I am having heat supplied, एक बेहतरीन चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा, दोनों के दोनों WD एंड डेल्टा U, WD is positive and delta U is also positive। मतलब देखो क्या ही तो बात है रे बाबा, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझना। एक ने बोला मैं पॉजिटिव हूं, बाकी दोनों भी उछल गए रे बाबा, मैं भी पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, यहां से आपको कुछ चीज समझ में आएंगी। लेट अस सपोज I am having isobaric heat interaction process and temperature is increasing. If I am having isobaric heat interaction process, temperature is increasing, immediately आपको पता चल गया डेल्टा U पॉजिटिव है। अगर डेल्टा U पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव होगा, that means I am having isobaric heat addition process। इतना तो कॉमन सेंस आ जाना चाहिए। The moment I am having expansion, the moment volume is increasing, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, the moment volume is increasing, I am having displacement work positive, जैसे ही displacement work positive हुआ 100% heat interaction is positive, I am having isobaric heat addition process। बस आपको एक हिंट लग जाना चाहिए प्रॉब्लम में, when they are framing the gate question, when they are framing the engineering service examination question, आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए कि बस मुझे ये बता दो कोई भी एक टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसने बोल दिया there is isobaric heat interaction process and the internal energy of the perfect gas increases by 100 kilojoule। अरे चंपू, internal energy is increasing by 100 kilojoule, that means delta U is positive। जैसे ही डेल्टा U पॉजिटिव हो गया, वर्क भी पॉजिटिव होगा, हीट इंटरेक्शन भी पॉजिटिव होगा। आई एम हैविंग isobaric heat supplied process। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ अपोजिट इज आल्सो ट्रू। ये ब्यूटी है बेटा आइसोबारिक की, क्या बेहतरीन ब्यूटी है। अगर Q नेगेटिव हो गया, अगर Q नेगेटिव हो गया, इफ द हीट इंटरैक्शन इज नेगेटिव, इफ द हीट इंटरैक्शन इज नेगेटिव, समझ में आ गई होगी बात। अगर हीट इंटरैक्शन नेगेटिव हो गया तो 100% चंपा डिस्प्लेसमेंट वर्क विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। बस एक पॉजिटिव है तो बाकी पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव है तो बाकी नेगेटिव है। याद रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा, ये किसकी बात कर रहा हूं? बात हो रही है आइसोबारिक की, आइसोबारिक हीट इंटरेक्शन की। आई होप एवरीवन इज क्लियर। बेटा बहुत डेप्थ में ले जा रहा हूं, ये जो आप समझ रहे हो ना, ये आपको प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग, है ना। बात हो रही है आइसोबारिक हीट इंटरेक्शन की, ऑफ कोर्स टू परफेक्ट गैस। फॉर परफेक्ट गैस। क्लियर है यहां तक? फटाफट से बोलिए बेटा, आर यू क्लियर टिल हियर? देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। अब बेटा मैं ऐसी चीज डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। अब बेहतरीन चीज आने वाली है बेटा, है ना। अब बेहतरीन चीज आने वाली है बेटा, ध्यान से सुनना। ये तो सबको पता चल गया, अभी इसमें क्या कंक्लूजन में बचा है, ये तो अब दुनिया को पता चल गया। फॉर सिंपल कंप्रेसिबल स्टेशनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ परफेक्ट गैस,
Isobaric heat supplied partially converts into displacement work while remaining is stored as internal. ये तो सबको पता है, अगर मैं isobarically heat supply कर रहा हूं, so some part will be converting into work and remaining part will be getting stored as an internal energy. This everyone knows. अब देखो कुछ बेहतरीन केसेस डिस्कस करूंगा, मजा आ जाएगा बेटा, मजा आने वाला है. अब सुन लो ध्यान से. Now listen carefully बेटा, ये चीज समझ के जाएंगे. Let us suppose I'm having a piston cylinder arrangement containing air. यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. Let us suppose I'm having a piston cylinder arrangement and this piston cylinder arrangement is carrying some air. बेटा आपको यहां पर ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये क्या है चंपू? What are these things? चंपू ये चीजें क्या है रे बाबा? ये ऊपर में इतने बड़े बड़े कान लगा दिए, क्या है रे बाबा? ये क्या है? These are the stoppers which will make your piston cannot go beyond this. Piston इससे आगे नहीं जा सकता. Let us suppose I am having air. मान लीजिए मेरे पास एयर है. टेम्परेचर होगा ना कुछ एयर का रे बाबा चंपो. Air will be having some temperature. Let me say air is having the temperature of 30 degrees Celsius. Let us suppose I'm having a piston cylinder arrangement which is carrying some air. Let me say the temperature of the air is 30 degrees Celsius. अब ध्यान से सुनना बेटा. I'm having a source which can supply the heat. I'm having a source which can supply heat. Of course, this source will be having some temperature. Let me say this source is maintained at some constant temperature. मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है. Now, listen carefully. Let me say this source is supplying the heat to the system. What is the system? This air is my system. मान लीजिए सोर्स ने कुछ हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया. Of course, the moment source will start supplying the heat, the piston will start moving upward. The piston will start moving upward because I will be having the isobaric heat addition ना बेटा. जो heat addition हो रहा होगा वो isobaric heat addition हो रहा होगा. अरे चंपू is asking sir how isobaric. अरे मेरा चंपो, can you observe? I'm having the constant dead weight na. So 100% piston will start moving upward because air will be undergoing expansion. The volume will keep on increasing. But what will happen to the temperature? Any intelligent student of the class can tell me what will happen to the temperature? Temperature का क्या होने वाला है बेटा? एक बार टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. When I'm supplying the heat from the source to the air, what will happen to the temperature? टेम्परेचर का क्या होगा बेटा? ईमानदारी से बता देना. टेम्परेचर का क्या होगा? What will happen to the temperature? अरे 100% टेम्परेचर ऑफ द एयर विल इंक्रीज ना. अरे ये तो कॉमन सेंस है. दिस इज कॉमन सेंस ओनली. यस, वेरी गुड. टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस. कब तक इंक्रीज होगा? कैन आई से टेम्परेचर ऑफ द एयर विल इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस? क्या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर ऑफ द एयर विल इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 200? No, it will not increase up to 200. मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो सकता है? अरे सोर्स का कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस. सोर्स अपने से ऊपर कैसे पहुंचा देगा रे बाबा चंपो? Then heat transfer will not take place ना. So 100% the maximum possible temperature is 100 डिग्री सेल्सियस. अब देखो ध्यान से चंपो, look at here बेटा. The piston is moving upward. Tumak. Volume is increasing, temperature is increasing. जब piston यहां पहुंच गया, when the piston reached here, let us suppose the temperature of this air became 100 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर ऑफ एयर क्या हो गया बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. अब इससे ऊपर नहीं जा सकता. The heat transfer will stop here. मान लो
पिस्टन ठुमक 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 ऊपर जा रहा था, टेम्परेचर ठुमक 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 बढ़ रहा था. लेट्स सपोज टेम्परेचर इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस समवेयर हियर. बेटा एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी, ये जो हीट एडिशन हुआ 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका कौन सा हीट एडिशन था? आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक हीट एडिशन. आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक हीट एडिशन, फटाफट से बोल देंगे बेटा. ये जो हीट एडिशन हुआ ये आइसोकोरिक हीट एडिशन था या आइसोबारिक हीट एडिशन था? अरे चंपा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है रे बाबा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस आई एम हैविंग व्हाट? आइसोबारिक आइसोबारिक हीट एडिशन. ये कंफर्म कर दो बेटा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ये सबको समझ में आ गया? आई एम हैविंग आइसोबारिक हीट एडिशन. बेटा ये एक बार कंफर्म कर देंगे, टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. अगर आपको यहां तक क्लियर है तो एक बार झमाझम टाइप कर देंगे. इफ यू आर क्लियर टिल हियर, एक बार झमाझम टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. अगर आप यहां तक क्लियर हैं एक बार झमाझम क्लियर टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. यस सर, झमाझम क्लियर. अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा. यस यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. यस, झमाझम क्लियर है रे बाबा. अब केस 2 देखना और मजा आएगा. केस 2 देखना बेटा और मजा आएगा. लेट अस सपोज आई एम हैविंग सेम एयर and let me say this air is having temperature of 30 degree Celsius. Let us suppose, बेटा कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, कहीं से भी घुमाकर पूछ ले गेट वाला, आपका क्वेश्चन बन जाएगा. बस क्लास समझते रहना. कीप अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम सेइंग. लेट सपोज आई एम हैविंग अ सोर्स. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा जो बता रहा हूं. Let me say the temperature of the source is 100 degree Celsius. मान लो there is a heat interaction. Heat is getting supplied from source to the system. System is basically your air. 100% piston will start moving upward. Piston ठुमक 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 ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. Piston will start moving upward. और चल रहा है. ओ हो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 55, 55 और व्हाट अ ब्यूटीफुल पिस्टन. ओ माय गॉड. पिस्टन ठुमक 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 यहां तक पहुंच गया. और टेम्परेचर अब यहां पर कितना है? मान लो, आई एम एज्यूमिंग, मान लो टेम्परेचर यहां पर 75 डिग्री सेल्सियस है. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. बेटा मुझे एक चीज बताना, क्या अब हीट इंटरैक्शन रुक जाएगा? पिस्टन यहां पहुंच गया. पिस्टन रीच्ड हियर. Piston reached here and the temperature of air now is 75 degrees Celsius. Do you think now the heat interaction will stop? अरे रुकेगा नहीं. सोर्स तो बोलेगा अरे चंपा, सोर्स बोलेगा अरे चंपा अभी तो तू 75 पर अरे बाबा, तू ये तो मैं 100 पे ले जाऊंगा, 100 पे, है ना. सोर्स बोलेगा क्या चंपू कहां रुक गया रे बाबा 75 पे, तेरे को तो मैं 100% समझाऊंगा रे बाबा, 100% समझाऊंगा. 75% समझना तो कुछ नहीं होगा. तो बोलेगा सोर्स ले और हीट, ले और हीट. तो फाइनली चंपू पहुंच जाएगा, सिस्टम पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे. अब बेटा ध्यान से सुनना. द ब्यूटी इज नाउ द हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम, sorry, heat supplied by the source to the system is divided into two parts. एक बार बेहतरीन चीज समझना बेटा. 30 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस एंड देन 75 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. बेटा किसी को समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बेटा यही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही है. गेट के अगर आपने ये समझ लिया ना, गेट का आधे क्वेश्चन खत्म है बेटा.
जिनको लोग बोलते ना और सर हिल ही नहीं रहा था क्वेश्चन, यही है, यही है। बस इसको समझ लो, लॉजिक को, आपको चीज समझ में आ जाएगी। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी 30 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस आई एम हैविंग आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक हीट एडिशन, है ना। आइसोकोरिक हीट एडिशन और आइसोबारिक हीट एडिशन 30 to 75, 100% आइसोबारिक हीट एडिशन, आइसोबारिक हीट एडिशन, है ना। और किसी को समझ में आया 75 to 100 ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है that will be because of isocoric heat addition और isobaric that will be because of isocoric। अरे पिस्टन तो चिपक गया रे बाबा स्टॉपर से, अब स्टॉपर बोल रहा है ना रे बाबा, ना रे बाबा, ना रे बाबा, ना, अब इससे आगे नहीं मूव होगा रे बाबा चंपू तू। हाँ, आइसोकोरिक हीट एडिशन। बेटा जरा एक बार बता देना झमाझम क्लियर है कि नहीं, एक बार बता देना बेटा झमाझम क्लियर है कि नहीं। बता दो बेटा झमाझम क्लियर है कि नहीं। अरे ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, अरे बाबा, यस यस यस, और ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, और झमाझम क्लियर है रे बाबा। अब उल्टा पूछ लूंगा तो घबराओगे तो नहीं, उल्टा पूछ लूंगा तो घबराओगे तो नहीं। अब एक बार देख लेना बेटा, लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट which is carrying air and it is having the stoppers. Let us suppose I am having a piston cylinder arrangement. This piston cylinder arrangement is carrying some air and you can see somewhere in the middle I am having stoppers. ये stoppers है रे बाबा चंपो। Now look at here, the air is at high temperature। जो air है बड़ी धुआंधार टेम्परेचर पर है रे बाबा। एयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस और ये जो सराउंडिंग है ना, ये जो सराउंडिंग है, मान लो ये सराउंडिंग कम टेम्परेचर पे है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, सराउंडिंग सराउंडिंग जैसी दिखनी चाहिए ना रे बाबा। हाँ, गरीबी में है तो गरीबी वाला कलर, गरीबी में है तो गरीबी वाला कलर ना। हाँ, गरीबी वाला कलर दे दिया सराउंडिंग को। सॉरी, ये गरीबी वाले कलर क्या होता है? अरे चंपू ये देखना, ये देखना, ये गरीबी वाला कलर है ना रे बाबा। अब जरा एक चीज बताना बेटा, एक चीज बताना, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस तो है बेटा, कुछ तो टेम्परेचर डिफरेंस है। एयर इज एट वेरी हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग कितने पे? 30 पर। 100% देयर विल बी सम हीट ट्रांसफर। अच्छा, हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा बेटा? सराउंडिंग से एयर को या एयर से सराउंडिंग को? ये तो कॉमन सेंस है रे बाबा, कॉमन सेंस है। हीट विल फ्लो नेचुरली, हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस नेचुरली फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 100%। अच्छा, हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 100 से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, 100 से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। पिस्टन झमाझम तरीके से नीचे आना स्टार्ट होगा। देखो पहले बेचारा यहां लटका हुआ था पिस्टन, अभी ठुमक 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 और ठुमक ठुमक ठुमक, पिस्टन विल स्टार्ट कमिंग डाउन। मान लो जब पिस्टन ठुमक ठुमक यहां पहुंचा, मान लो एयर का टेम्परेचर घटकर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। Can I say the moment air temperature will reach to 30 degree Celsius, now there is no more heat transfer। जो हीट ट्रांसफर होता है वो खत्म हो गया बेटा। सराउंडिंग वाला भी बोलेगा अरे अब तेरे से क्यों हीट लूंगा रे बाबा मैं, तू भी 30 पे मैं भी 30 पे,
तू कौन सा अंदाता हो गया, यही बोलेगा ना रे बाबा, बोलेगा अब तेरे से हीट नहीं लेंगे रे बाबा, हम अब तेरे से नहीं लेंगे रे बाबा, अब तू डोनर नहीं कहला सकता। तो अब हीट इंटरेक्शन रुक जाएगा। बेटा मेरे को तो सिर्फ एक छोटी सी चीज जाननी है, 100% द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर 100 से डिक्रीज होके हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओ ये आइसोबारिक हीट रिजेक्शन है या आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, बस इतना बता दो मैं खुश हो जाऊंगा बेटा। टेल मी वन थिंग, इट इज आइसोबारिक हीट रिजेक्शन और आइसोकोरिक। अरे कौन चंपू इसको आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन बोलेगा बेटा, इसमें तो 100% डेड वेट कांस्टेंट है, पिस्टन इज फ्री टू स्लाइड डाउनवर्ड, 100% इट इज योर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन है ना रे बाबा। ये तो आइसोबारिक हीट रिजेक्ट, अरे पूरे मूड में हूं बेटा मैं पढ़ाने के, हा पूरे मूड में पढ़ा रहा हूं रे बाबा, पूरा थर्मो मूड में पढ़ाऊंगा रे बाबा। आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन है ना। यहां तक क्लियर है, बोलो बेटा यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अरे झमाझम क्लियर हो जाए रे बाबा, क्लियर है मेरे सामने ना, क्लियर से नहीं चलता बेटा कुछ भी, ये क्लियर वर्ड मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में आता झमाझम क्लियर। एक बार टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में सर झमाझम क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। झमाझम क्लियर है, ये हुई ना बात। सर आज की क्लास 3 घंटे की, सर आप मूड में है तो मेरी प्लस की क्लास भी होती है बेटा। आज ये मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास है, फोर्थ सेशन है आज मेरा, फोर्थ सेशन है, इसके बाद 5वां सेशन लाइव है और छठा सेशन फिर 10:45 पर है। बाप रे बाप, अब सुनो ध्यान से, अरे आप लोग के लिए कुछ भी रे बाबा। लेट अस सपोज आई एम हैविंग एयर which is at the temperature of 100 degrees Celsius. Let me say this is surrounding. Let me say this is surrounding. Which is at 30 degrees Celsius. 100% if I am having conducting material, there will be some heat transfer. Heat transfer will start from air to the surrounding. अब पिस्टन क्या होगा, ठुमक ठुमक करके नीचे आना स्टार्ट कर देगा। Now what will happen? Piston will start coming down, ठुमक 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 ठुमक। अरे यही तो है, ये आएगा बेटा, ये आएगा, ये ठुमक 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 आना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही यहां तक पहुंचा, टेम्परेचर डिक्रीज होकर, मान लो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होके मान लो केवल 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, तो अभी भी 30 से ज्यादा, अभी तो 30 से ज्यादा तो है अभी भी। सो 100% टेम्परेचर और डिक्रीज होगा भाई जब आप यहां पर पहुंचे। व्हेन द पिस्टन रीच टू द स्टॉपर्स, तो तब एयर का टेम्परेचर, देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 75 डिग्री सेल्सियस, बट स्टिल देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, still there is a temperature difference, so 100% the temperature of air will keep on decreasing, 75 से डिक्रीज होके फाइनली तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि ये भी 30 पर ना आ जाए। अब आपसे एक बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, पूछ लेना, पूछ रहा हूं बता देना। 100 डिग्री सेल्सियस टू 75, बोलो बेटा एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन आई एम हैविंग आइसोबारिक हीट रिजेक्शन और आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। अरे सही है रे बाबा, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। है ना,
75 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। There is no change in volume, there is no movement of the piston. यार रिजेक्शन लिखते हैं ना, अरे बाबा रे बाबा। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हैं सब लोग? यस। अब आएगा ना मजा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। बेटा कल कल कितने बजे मिल रहे हैं हम लोग? टुमारो एट व्हाट टाइम वी आर मीटिंग? ये देखो कुछ लोगों को पता ही नहीं है बेटा, कल भी क्लास है, कल भी क्लास है। टुमारो इज 14th of March and we will be meeting on Unacademy learning app. I will be taking Unacademy free special class for you people. 11:30 मॉर्निंग पर मिलेंगे बेटा, लगभग 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? हीट इंटरेक्शंस के प्रॉब्लम। जितना अभी तक पढ़ा है इस वीक में, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, है ना? हीट इंटरेक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है बात? आई होप एवरीवन इज क्लियर, है ना? जो लोग नए जुड़ेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, उनको इनवाइट कोड डालना होगा। देयर इज ओनली वन इनवाइट कोड फॉर नेगी सोल्जर्स। नेगी सोल्जर्स के लिए तो एक ही इनवाइट कोड है रे बाबा, है ना? तो भूलना मत, अदरवाइज आई विल कम इन योर ड्रीम्स एंड आई विल किल यू। मजा आ गया। अभी कॉलेज का मिड है तो वो पढ़ने का मूड नहीं बन रहा है। सही है। नहीं नहीं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा बेटा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। अरे बाबा रे बाबा, झमाझम सीरीज इस वीक स्टार्ट नहीं होगी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। कल तो लॉन्च था, कल मैं बताना भूल गया, कल मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि मंडे से स्टार्ट हो रही है ना? ठीक है। यस, आइसोकोरिक मींस कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चलो आगे चलें बेटा। शैल वी मूव फॉरवर्ड? शैल वी मूव फॉरवर्ड? आगे चलें। जल्दी से बोलो, आगे चला जाए, है ना? चलो अब बेटा आपको एक चीज तो पता होगी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, कि सीपी सीवी से बड़ा होता है ना, सीपी सीवी से बड़ा होता है ना। तो एक बार समझ भी लेते हैं व्हाई द सीपी इज मोर देन सीवी। बेटा मैंने अभी तक आपको दो तरीके की वाइफ बताई है। टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू टू टाइप्स ऑफ वाइफ्स। द फर्स्ट वन व्हिच आई टोल्ड यू इज आई थिंक आइसोकोरिक वाइफ, द सेकंड वन इज आइसोबारिक वाइफ। एक बार याद दिला देता हूं। देखो चंपू की पहली पत्नी सम परफेक्ट गैस मान लो, है ना? देखना बेटा ध्यान से, चंपू की पहली पत्नी आइसोकोरिक वाइफ। चंपू ने कमाए 20,000, आइसोकोरिक पाइप का खर्चा 0, तो पूरी की पूरी सैलरी हो गई सेविंग, पूरी की पूरी सैलरी हो गई सेविंग। अरे वाह मस्त, मजा मस्त, मतलब आइडियल वाइफ है रे बाबा। बोलती है ना रे बाबा, चंपू इतनी मेहनत से कमा रहे बाबा, मैं क्यों किटी पार्टी करूंगी, मेरा कोई खर्चा नहीं है रे बाबा चंपू। यस, 20,000 रुपए सेविंग। यस, एंड ऑफ कोर्स पासबुक में तो एंट्री होती धड़ाधड़ हर महीने, एवरी मंथ 20,000 इंक्रीज,
1 lakh से 1,20,000, नेक्स्ट मंथ 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, 2 lakhs 20,000। अरे बहुत झमाझम तरीके से चंपू की सेविंग बढ़ रही थी। अभी चंपू की नई वाइफ ना, तो चंपू इज हैविंग न्यू वाइफ ना, वो तो पुरानी वाली है। यस यस, चंपू इज हैविंग 5 वाइफ। एक एक करके बताऊंगा रे बाबा। ये तो पहली वाली थी, आइसोकोरिक वाइफ इज द फर्स्ट वाइफ। भी चंपू की दूसरी शादी हुई आइसोबारिक वाइफ। यस, चंपू इज हैविंग आइसोबारिक वाइफ। अभी आइसोबारिक वाइफ केस में क्या है, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर क्या है, चंपू इज अर्निंग 20,000, चंपू इज अर्निंग 20,000, वाइफ इज हैविंग एक्सपेंडिचर, वाइफ इज हैविंग एक्सपेंडिचर, झमाझम एक्सपेंडिचर है रे बाबा, झमाझम एक्सपेंडिचर है रे बाबा। तो चंपू की सेविंग कितनी है, 5,000। जॉइंट अकाउंट में जो अमाउंट बढ़ रहा है, वट एवर द अमाउंट इज इंक्रीजिंग इन जॉइंट अकाउंट, दैट इज इंक्रीजिंग बाय 5,000 रुपीज पर मंथ। मतलब जो आपकी पासबुक होगी वो कैसे दिखेगी, 1 लाख, नेक्स्ट मंथ 1,05,000, नेक्स्ट मंथ 1,10,000, फिर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, इतना ही है। अब एक दिन क्या हो गया रे बाबा, वन डे व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो। चंपू की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वन डे आइसोबारिक वाइफ समहाउ, पता नहीं कुछ तो चल रहा था घर में, पेंटिंग वेंटिंग का काम, कहीं से आइसोबारिक वाइफ को वो पुरानी वाली पासबुक मिल गई, आइसोकोरिक वाइफ वाले टाइम की। बाप रे बाप, ओ नो, ओ नो, पूरा गुस्से में लाल, ये क्या चल रहा है। पहले हर महीने 20,000 सेविंग होती थी, अब केवल 5,000 हो रही है। चंपू इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज कमिंग लेट नाइट होम, 9-10 बजे बेचारा आता है, 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, 3 घंटे की ट्रैवलिंग है, घर पहुंचा, वाइफ ने एकदम अटैक कर दिया। चंपो, चंपो, what happened to you, what happened to you, earlier you were saving 20,000 rupees per month, now you are saving only 5,000 rupees per month. I'm telling you with my personal experience, जब वाइफ गुस्सा हो, when the wife is angry, you should not utter even a single word. And Champu is the decent husband, वो क्या बोलेगा, ये बोलेगा आइसोकोरिक कुछ भी खर्चा नहीं करती, तुम खर्चा करती हो। How dare, how dare, कुछ नहीं बोल सकता बाबा। चंपू कैन नॉट से एनीथिंग, चंपू कुछ नहीं बोल सकता। चंपू का मुंह चुप, अल्टीमेटम मिल गया, आई डोंट नो एनीथिंग। आइसोबारिक वाइफ ने अल्टीमेटम दे दिया, आई डोंट नो एनीथिंग। कैसे भी करके, कैसे भी करके नेक्स्ट मंथ से 20,000 सेविंग होनी चाहिए। अब चंपू क्या करेगा, अब चंपू क्या करेगा, पहले तो दिन में काम करता, तब रात में भी काम करेगा, मजदूरी करेगा, चौकीदारी करेगा, और क्या करेगा। नाउ चंपू जॉइंड नाइट शिफ्ट आल्सो। हाँ बेचारा चंपू, नाइट शिफ्ट भी ज्वाइन किया चंपू ने। नाउ चंपू इज अर्निंग 20,000 फ्रॉम द डे शिफ्ट, 15,000 फ्रॉम द नाइट शिफ्ट। चंपी, चंपी बोले तो आइसोबारिक, आइसोबारिक वाइफ का खर्चा 15,000, अभी सेविंग बढ़ के 15,000 और सेविंग हो गया, बहुत बढ़िया। नाउ द सेविंग इज 20,000। Are you getting what I'm saying? Now saving is 20,000 rupees per month. अब सुनना बेटा, what is the conclusion I'm trying to give you? ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था, वो मजा तो ले लो रे बाबा, इतनी कहानी सुन ली तो मजा तो ले लो। Now the meaning is, try to understand. Meaning is, for the same internal energy change, for the same internal energy change, अगर मैं same internal energy change चाहता हूं, then the amount of heat supplied is more in case of isobaric heat addition as compared to isochoric heat addition. और अगर कोई मुझे रीजन पूछेगा तो मैं बोलूंगा, in case of isochoric heat addition the displacement work is 0, but in case of isobaric heat addition I am having some amount of displacement work. Are you clear till here? यहां तक सबको क्लियर what I am saying?
For the same change in internal energy, for the same change in internal energy, the amount of heat supplied will be more in isobaric heat addition process, because in isobaric heat addition process, some of the heat supplied will be converting into displacement work, whereas in case of isochoric heat addition, there is no displacement work. कोई displacement work होता ही नहीं है. अरे झमाझम क्लियर है रे बाबा. एक चीज 100% कॉन्फिडेंस से लिख दूं बेटा, एक चीज 100% कॉन्फिडेंस लिख दूं, फॉर सेम चेंज इन internal energy, that is for same change in temperature. अरे अगर मैं बात करूं परफेक्ट गैस की, तो फॉर परफेक्ट गैस इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सो इनडायरेक्टली आई एम सेइंग फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर 100% heat supplied in isobaric process is more as compared to heat supplied for isochoric process. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, there is no doubt in this. अच्छा, now what will be this? ये तो मुझे बेसिक डेफिनेशन पता है. delta H will be more than what is the heat supplied at constant volume? delta U. अरे यही तो हमने डेराइव किया था कल और परसों. The heat supplied at constant pressure is equal to change in enthalpy. If I'm talking for perfect gas, heat supplied at constant volume is equal to change in internal energy. Now what is the delta H? mCp delta T. What is the delta U? mCv delta T. Or something is getting swaha, mm is getting swaha, delta T is getting swaha. Oh my god, oh my god, इसका मतलब क्या हो गया? Cp is greater than Cv. यही तो चाहिए. अब बेटा सुनना ध्यान से, मैंने परफेक्ट गैस लिया है. यू कैन टेक एनी सब्सटेंस हैविंग कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, उसके लिए भी वैलिड है, बिकॉज सीपीसीवी आना है ना रे बाबा. डेल्टा एच आई नीड टू राइट एज एमसीपी डेल्टा टी, एंड ऑफ कोर्स डेल्टा यू आई नीड टू राइट एज एमसीवी डेल्टा टी. यहां तक क्लियर है? सीपी इज ग्रेटर देन सीवी. तो अब आपको कहानी समझ में आ गई कि व्हाई आर वी हैविंग Cp greater than Cv, because in case of isobaric heat addition process, some of the heat supplied will be converting into displacement work, whereas in case of isochoric heat addition, nothing is getting converted into work. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? I hope each and everyone is clear till here. अरे क्या ही तो कॉन्सेप्ट है रे बाबा. ठीक है, यहां तक क्लियर है? बेहतरीन तरीके से क्लियर है. एक्सीलेंट है रे बाबा. रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग फॉर द सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वो एक रेफरेंस है बेटा, याद रखना. चलो आगे चलें. शैल वी मूव फॉरवर्ड? थोड़ा सा और आगे चलेंगे बेटा, है ना. एक बेहतरीन एनालिसिस करते हैं. जरा हेडिंग पढ़ो. What is the next heading? Analysis for an ideal gas. एक बेहतरीन एनालिसिस हो जाए आइडियल गैस के लिए. बेटा एक बार ध्यान से देख लेना. Can I write small h is equal to small u plus p small v? बेटा ये बताना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? Specific enthalpy is equal to specific internal energy plus प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम. लिख सकता हूं बिल्कुल. एंड यू नो ना, आई हैव टोल्ड यू देयर इज नो कंडीशन फॉर अप्लाइंग दिस. इसको लगाने की कोई कंडीशन ही नहीं है रे बाबा. इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनीथिंग. एनी सब्सटेंस, एनी सिस्टम, एनी प्रोसेस. यस, अब सुन लो ध्यान से. अब
सुन लो ध्यान से बेटा, कैन आई से DH इज इक्वल टू DU प्लस D ऑफ PV, स्मॉल v ऑफ कोर्स, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर ए, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, है ना। नाउ लुक एट हियर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, बेटा ये तो आपको याद होगा, फॉर आइडियल गैस एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सो 100% DH can be written as Cp dt. DH is equal to Cp dt. We know for an ideal gas, internal energy is the function of temperature only. So 100% du is equal to what? Cv dt. अच्छा जी, now PV is equal to what? RT. Shampoo is asking, sir, mouse कहाँ चला गया sir? Alright, shampoo. This is not capital V रे बाबा, this is small v रे बाबा. Capital V, ये बड़ा B is volume. छुट्टू B is a specific volume. Specific volume is volume by mass. तो वो mass उसके अंदर छुपा रहे बाबा. Substituting in equation A. So what are we going to get? D of DH Cp dt is equal to du Cv dt plus D of RT. अरे चंपू, ये R तो कांस्टेंट रे बाबा, और a given ideal gas R is constant, characteristic gas constant, it will come out of the differentiation. ले ले रे बाबा चंपू बाहर. Cp dt is equal to Cv dt plus R dt. Something is getting swaha, something is getting swaha. dt swaha, dt swaha. So what are we getting? Cp is equal to Cv plus R. Champu re baba, champu. That means Cp minus Cv is equal to capital R. अभी चंपू बोलेगा, सर ये Cp क्या है, सर ये Cv क्या, मुझे पता है रे बाबा, मेरा चंपू सब पूछता है ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन. तो लिख देता हूं. चल चंपू, तेरे लिए स्टाइल से लिखेंगे रे बाबा. हाँ, स्टाइल वाला, चंपू के लिए स्टाइल वाला लिखेंगे. Cp is the specific heat at constant pressure. है ना. Cv is equal to what? Specific heat at constant volume. Yes. ये आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. बोलेंगे बेटा यहां तक झमाझम तरीके से क्लियर है? अरे सही है रे बाबा.
अब देखना बेटा, एक चीज और बता देना, या चलो नेक्स्ट पेज में लिख दूं क्या? नेक्स्ट पेज में लिख दिया जाए क्या? कैन आई राइट बेटा? CP बार सिमिलरली माइनस CV बार इज इक्वल टू R बार। ये क्या है? अरे ये क्या है रे बाबा, ये तो नई चीज है। CP बार, ये बार बार क्या है? ये बार बार क्या है? टाइप करो रे बाबा चैट बॉक्स में, ये बार बार क्या है? मोलार, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? सही है। CV बार क्या है रे बाबा? हमको CV बार क्या है रे बाबा? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये R बार क्या है रे बाबा? बहुत बढ़िया। R, कैपिटल R was characteristic gas constant. This R bar is यूनिवर्सल। यस, जैसे मेरा चंपू हर सब्जेक्ट में आता है ना, वैसा ही है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बेटा एक बार यूनिट देख लेना, घबराना मत। यहां पे जितनी भी टर्म्स हैं उनकी यूनिट होगी जूल पर केजी पर केल्विन, और यू कैन से किलो जूल पर केजी पर केल्विन, है ना? पर केजी में होता है यहां पर। व्हेन वी आर सेइंग स्पेसिफिक, when we are saying only specific or characteristic, it will be in per kg. When we are saying molar specific, when we are saying molar specific, when we are saying universal, then it will be in per kilomole. Yes, joule per mole per Kelvin or kilojoule per kilomole per Kelvin. कंफर्म कर दो बेटा यहां तक। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.